Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all on the fifth day of 7-day workshop on lesson planning organized by DAN College of Education for Women Nawa Shahar in collaboration with CTEF Punjab and Chandigarh chapter. I extend my heartiest welcome to the resource person of our today's session, Dr. Rekha, Assistant Professor, Malwa Central College of Education, Ludhiana. Yesterday, we had very good session on ICT-based lesson planning. The resource person of yesterday's session was Dr. Gurvinder Singh. Dr. Gurvinder Singh has wonderfully explained the concept of ICT-based lesson planning. He acquainted the participants with various ICT tools and also demonstrate how to use these tools in their lesson planning. So, our today's session is on lesson planning based on constructivistic approach. And our today's resource person is Dr. Rekha. Dr. Rekha is Assistant Professor, Malwa Central College of Education for Women, Ludhiana. She has more than 17 years of teaching experience. She has written many research papers in national and international journals. She also acted as resource person in many national and international conferences. She remained senator of Guru Nanak Dev University in the year 2010 and 11. Now, without wasting much of your time, I request Dr. Rekha to proceed with today's session. Dr. Rekha, please. Thank you, Dr. Vikas. Well, before starting my discussion on the topic that has been assigned to me, I want to congratulate entire team behind this workshop. I congratulate Managing Committee of DAN College of Education for Women, Nawa Shahar, Dynamic Principal, Mrs. Gurvinder Kaurji, entire organizing committee, CTEF Punjab and Chandigarh chapter, for the wonderful initiative that they have taken to organize this workshop. Lots of congratulations. Well, coming to the topic of my discussion, before starting my discussion, just give me a minute, I just share my screen. Dear participants, I will be presenting my views on lesson planning based on constructivist approach. I request everybody to imagine a traditional classroom. एक ट्रेडिशनल क्लासरूम कैसा होता है? जब भी एक ट्रेडिशनल क्लासरूम का जिक्र आता है तो हमारे सामने एक ऐसी कक्षा आती है जिसमें कन्वेंशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है. जहां तक टीचर के रोल की बात करें तो टीचर का रोल भी वेल डिफाइंड रहता है. ये मान के चला जाता है कि टीचर जो है he or she is embodiment of knowledge और उसका मेन रोल है कि उससे विद्यार्थियों तक उस नॉलेज को पहुंचाना है. टीचर जो है उसको प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज समझा जाता है. टीचर जब कक्षा में जाता है, जब अपनी वो रूटीन टीचिंग करता है, वो भी ये मान के चलता है कि उसके सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है और ये उसकी ड्यूटी है कि वो उन विद्यार्थियों तक वो नॉलेज पहुंचाए जो कि उसके पास है. इस प्रोसेस के दौरान वो विद्यार्थियों की इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल भूल जाता है and focusing on the content and the method with which he or she is comfortable, the teacher start teaching. अब ऐसे क्लासरूम में जहां तक लर्निंग है वो भी थ्रू मेमोराइजेशन चलती है और सब कुछ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहता है. एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेना, दैट इज द ओनली फोकस. जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ये हमारे को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन इस प्रोसेस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता. अब NCF 2005, जब NCF 2005
आया। तो इस डॉक्यूमेंट पेपर कि अगर आप ओपनिंग पेजेस में देखें तो इट ओपन्स विद अ वेरी वंडरफुल कोटेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये जो कोटेशन है, ये इस कोटेशन में जो पोएट है उन्होंने बताया है कि बचपन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कीज होती हैं वो है क्रिएटिविटी और जेनरस जॉय। लेकिन पोएट कहते हैं कि हम लोग एडल्ट्स, ये जो अनथिंकिंग एडल्ट वर्ड है, ये जो बचपन की जो कीज हैं इनको बिना सोचे समझे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी संदर्भ में ये बहुत डिटेल्ड जो है इस कोटेशन के बारे में बहुत डिटेल में इस करिकुलम फ्रेमवर्क में दे रखा है। मैं आपको शॉर्टली आपके साथ, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड बाय इट and it has lot of relevance with the topic which we will be discussing. I also want to discuss with you. टैगोर कहते हैं कि जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे थे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खूब खेलते थे। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे तो ये जो प्रोसेस था प्लेइंग का, इसके दौरान वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। वो नई नई गेम्स खेलते थे, नए नए टॉयज बनाते थे, हैंडमेड टॉयज। और ये जो हैंडमेड टॉयज वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ बनाते थे। इस प्रोसेस के दौरान दे यूज्ड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। फिर टैगोर कहते हैं कि अचानक उनका ये जो खूबसूरत पैराडाइज था उसको नजर लगी। क्या हुआ कि उनमें से किसी एक के पेरेंट ने बाजार से एक बहुत ही सुंदर खिलौना लाके उसको दे दिया। अब जब वो टॉय, जिसको टैगोर ने परफेक्ट टॉय का नाम दिया है, जब वो टॉय उस बच्चे को मिला तो उसका जो इंटरेस्ट है सारा का सारा उस टॉय की ओर हो गया। उसको ना तो गेम्स जो बच्चे मिलके खेलते थे ना उसमें इंटरेस्ट रहा, ना ही उसको उन टॉयज में इंटरेस्ट रहा जो कि हाथों से वो बनाते थे, बिकॉज वो तो फुल ऑफ इम्परफेक्शंस होते थे। और ना ही उनमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती थी जो कि कुछ नया उनको दे। उसमें तो बस वो तो उन टॉयज को इमेजिन ही करते थे कि वो इमेजिन करके उस इमेजिनेटिव दुनिया में रहते थे। अब जो वो बच्चा है उसने अपनी दूरी बना ली बाकी सब से। इवन जो बाकी सब प्लेमेट्स थे उनका भी ध्यान उस टॉय की ओर आकर्षित होने लगा और उन्होंने भी अपनी इस ये जो रूटीन उनकी एक्टिविटी थी इसमें इंटरेस्ट लेना खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, टैगोर कहते हैं कि ये जो परफेक्ट टॉय जो पेरेंट ने लाके दिया, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन सभी बच्चों से छीन ली। वो थी कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट चाइल्ड। परफेक्ट चाइल्ड क्या है? परफेक्ट चाइल्ड जो वो है जो कि खुद से सोचता है, फ्रीली सोचता है, इमेजिनेशंस में रहता है, जो क्रिएटिव होता है और जो इस प्रोसेस के दौरान एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीख जाता है। जब हम तो ये जो बात हमने अभी डिस्कस की, इसमें जो प्रोसेस था जिसमें बच्चे खेलते थे, खेल खेल में बहुत कुछ सीखते थे, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की ओर इशारा करता है। और ये जो एडल्ट का इंटरफेरेंस और एक परफेक्ट चीज लाके विद्यार्थी को देना, इसको अगर हम इमेजिन करें तो ये वही ट्रेडिशनल क्लासरूम है जिसमें एडल्ट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ टीचर या घर में पेरेंट्स परफेक्ट रेडीमेड मटेरियल स्टूडेंट को देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको मेमोराइज करे और पेपर के ऊपर लिख दे। तब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो जॉन डीवी जो है इनका नाम आता है, इनको फिलोसॉफिकल फाउंडर माना जाता है इस अप्रोच का। ब्रूनर, पियाजे, इनको चीफ थ्योरिस्ट कंसिडर किया जाता है। कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में इन्होंने वर्क किया है एंड दे हैव फॉर्म्ड थ्योरीज इन दिस रिगार्ड। इवन वाइगॉट्स्की जो है इनका काम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर है और इन्होंने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फेवर किया। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये नहीं है कि इन इंडिया दिस अप्रोच बिकेम पॉपुलर with the advent of national curriculum framework in 2005. Much before
दिस, जब हमारे ग्रेट एजुकेशनिस्ट फिलोसफर्स, जब उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन किया, जब उन्होंने हमारे सामने ये रखा कि शिक्षा क्या है, तो उन्होंने इस अप्रोच को टच की। मैं ज्यादा नहीं, लेकिन 2 कोटेशंस आपके सामने आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, जब उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन क्या है, ये मैनिफेस्टेशन है। किसकी मैनिफेस्टेशन है? परफेक्शन की, जो कि ऑलरेडी है एक इंसान के अंदर। तो ये भी क्या था, यानी परफेक्शन वो कहते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, जो हमें बाहर से देनी है किसी इंडिविजुअल को। इट इज ऑलरेडी देयर इन द मैन, एंड एजुकेशन जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशन। सिमिलरली जब महात्मा गांधी जी कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तो वो भी इसी और इशारा करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है कि जो ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट, जो बेस्ट है एक बच्चे में, एक इंसान में, कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट में से उसको बाहर लेके आना, दैट इज एजुकेशन, राइट। सो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसी सोच के साथ चलती है। जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक लर्निंग थ्योरी है जिसमें लर्निंग को एक्टिव प्रोसेस मान के चला जाता है। इसमें लर्नर्स जो हैं ये अपनी नॉलेज को खुद से बिल्ड करते हैं, किसको बेस मानकर? अपनी प्रायर नॉलेज को बेस मानकर। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो लर्नर का रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव है, वो ब्लैंक स्लेट नहीं है। उनके पास, आप सब जानते हो कि जो विद्यार्थी हैं वो तो वैसे बड़े इंक्विजिटिव होते हैं, दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स, right? So they have already learned so many things from the experiences. तो ये अप्रोच ये सोच के चलती है कि लर्नर्स जो हैं वो पैसिव नहीं है, दे आर नॉट वेटिंग कि नॉलेज कोई उनके दिमाग में आकर डाल दे। इनफैक्ट दे देमसेल्व्स, दे हैव द नॉलेज, एंड हमारा रोल क्या है कि उस प्रायर नॉलेज को यूटिलाइज करके उनको फर्दर जो है उनकी नॉलेज को एनहांस कर। अब आ जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है वो ऐसा है जिसमें वातावरण दिया जाता है, जिसमें ऐसा वातावरण है जिसमें स्टूडेंट को हर तरीके से इंकरेज किया जाता है कि वो अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करे, ना कि वो सिर्फ कंटेंट को रट्टे लगाए। अब इस क्लासरूम एनवायरनमेंट के संदर्भ में मैं आपको याद करवाना चाहूंगी एक मूवी, 3 Idiots। आई होप सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर मूवी, आप सबने देखी होगी। ये मूवी एक बहुत बड़ा स्टायर है हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इस मूवी के भी मैं आपको उस सीन की ओर लेके चलूंगी जहां पर एक टीचर, एक ट्रेडिशनल टीचर आई मस्ट से, बच्चों को विद्यार्थियों से मशीन के बारे में बातचीत कर रहा है और उनसे मशीन के बारे में पूछता है। वो विद्यार्थियों से पूछता है कि मुझे बताइए मशीन क्या है। विद्यार्थी हाथ खड़ा करते हैं, रैंडमली वो एक विद्यार्थी को खड़ा करता है और वो विद्यार्थी टीचर को बोलता है कि सर, हर वो चीज जो काम को आसान बनाती है उसे मशीन कहते हैं। टीचर के एक्सप्रेशंस ये विद्यार्थी की बात सुनकर ऐसे होते हैं जैसे कि वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ। वो बोलता है कि वो तो ठीक है, बट मैंने आपसे पूछा है डिफाइन मशीन, यू डिफाइन मशीन। वो विद्यार्थी फिर से टीचर को अलग शब्द यूज करके बताता है कि मशीन क्या है, इवन वो एग्जाम्पल्स भी देता है, पर टीचर बिल्कुल कन्विंस नहीं होता, इनफैक्ट गुस्से में आ जाता है। अब एक और विद्यार्थी उसी कक्षा का हूबहू उसने जो भी अपनी टेक्स्ट बुक में मशीन के बारे में पढ़ा होता है टीचर को बता देता है। टीचर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, टीचर उसको शाबाश देता है और पहले विद्यार्थी को बोलता है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन। वो विद्यार्थी बड़े हैरानी से टीचर की ओर देखता है और बोलता है, सर मैंने भी तो यही बोला था। तो टीचर कहता है कि तुमने क्या यही बोला था? वो कहता है हाँ बिल्कुल, आसान शब्दों में।
तो वो बोलता है, टीचर कहता है, टीचर अभी भी कन्विंस नहीं होता, वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ये आसान शब्द यूज करने का शौक है तो तुम ह्यूमैनिटीज को ज्वाइन करो, व्हाई आर यू हियर इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये है ट्रेडिशनल क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म, अगर ये ट्रेडिशनल, ये जो सीन जो है ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की ओर इशारा करता है, जहां पर वी एज टीचर वी आर नॉट एट ऑल रिसेप्टिव टुवर्ड्स द आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स खुद से कुछ बताएंगे, हो सकता है वो गलत भी बताएं, हो सकता है वो ना बताएं जो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन स्टिल उनके रिस्पॉन्सेस को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ही बेस बना के आगे कंसेप्ट की ओर लेके जाना चाहिए। दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सेज। आगे आ जाता है मेथड। जहां तक कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड जो है, हर वो मेथड कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के दायरे में आता है जो कि ऐसे लर्नर्स प्रोड्यूस करता है जो कि इन्वेस्टिंग हो, रेशनल थिंकिंग वाले हो, जो इंक्विजिटिव। टीचर जो है ऐसे क्लासरूम में वो हमेशा उसका जो डिसीजन रहता है वो इसी और रहता है कि कैसे वो स्टूडेंट की डेवलपमेंट को और ज्यादा एनहांस करे। और इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि नॉलेज को तभी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है अगर करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक सब कुछ टीचर को इनेबल करें कि वो क्लासरूम एक्सपीरियंसेस ऐसे ऑर्गेनाइज करें जिसमें विद्यार्थियों की मैक्सिमम डेवलपमेंट हो और उन्हें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले उनके ग्रोथ की। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो टीचिंग है उसका एम है बच्चों के अंदर डिजायर पैदा करना, राइट, कि वो सीखें। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि हमेशा ये मान के चलो कि नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। हम यहाँ पे बच्चों की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं, ना कि सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। फर्दर ये भी मान के चलो कि टीचिंग जो है ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग ही है जिसने एक स्टूडेंट को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये चीज हमेशा सोच के चलो और ये सोचो कि टीचिंग जो है इट इज नॉट कोचिंग फॉर मेमोराइजेशन, ना तो ये कोचिंग है कुछ भी रट्टा लगाने की, फैक्ट्स को ट्रांसमिट करने की, ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग तो है जो नॉलेज मेरे पास है, जो नॉलेज विद्यार्थियों के पास है, विद्यार्थी की नॉलेज को सामने रखते हुए जो मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं उसे मैं पहुंचाऊं ताकि उनकी नॉलेज और ज्यादा बढ़े और ज्यादा एनहांस हो। एक्टिविटी जो है दैट इज द हार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। और ये अप्रोच कहती है कि हर वो रिसोर्स हम लोगों को यूज करनी चाहिए, चाहे वो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट है, चाहे वो किसी तरह का भी कॉन्टेक्स्ट है, वी शुड टेक हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स। फर्दर ये जो अप्रोच है ये कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि क्लासरूम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऐसे हो जो कि विद्यार्थी को हेल्प करें कि वो अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे, तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर जो है वो अपने लेसन्स को इस ढंग से प्लान करे कि उनकी जो प्लानिंग है वही इस तरह की होनी चाहिए जिसमें हर वो चीज इन्वॉल्व हो दैट हेल्प्स द चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। अब बात आ जाती है टीचर एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब ऐसा टीचर जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ पे रोल आ जाता है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ऐसे टीचर प्रिपेयर करने चाहिए जिनको सेंसिटिविटी हो टुवर्ड्स दिस अप्रोच। क्या है, हमारे जो रूटीन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है वो हमारा जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो भी कन्वेंशनल टीचिंग में ही बिलीव करता है। हमारी जो ट्रेनिंग रहती है उसमें भी हमारा मेन फोकस यही होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इस सिस्टम में फिट हो जाए। चेंज जो है वो हमारे को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि जब हमने टीचर्स को, अगर हम चाहते हैं कि टीचर अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज करे तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको इस दिशा में प्रिपेयर करें। इस दिशा में प्रिपेयर करने के लिए अगेन वही बातें जो है वो ध्यान में रखने वाली हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है कि टीचर जो है वो व्यू करे कि नॉलेज कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो टीचर है
उसको इस चीज की सेंसिटिविटी रहे कि नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही नहीं विद्यार्थियों तक पहुंचती, नॉलेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रक्ट की जाती है। सो जब भी प्लानिंग करनी है, जब भी आपने टीच करना है, जब भी आप क्लासरूम में जाते हो या लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो, तो कंटेक्सुअल टीचिंग को बहुत ज्यादा महत्व दो। इसके अलावा टीचर्स जो है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ऐसे टीचर प्रिपेयर करवाने, टीचर को ये ऐसे टीचर ट्रेनीज को इस ढंग से प्रिपेयर करवाना चाहिए कि वो उनको ये सेंसिटिविटी हो कि उन्होंने अपनी कक्षा में जाके विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटीज देनी है, ताकि उन्होंने विद्यार्थियों को ऑब्जर्व करने की, उन्होंने बच्चों को एंगेज करना है, उनकी क्लास में इंटरेक्शन मैक्सिमम रहेगा, उन्होंने विद्यार्थियों को सेल्फ लर्निंग की, रिफ्लेक्शन की, एसिमिलेशन की, आर्टिकुलेशन की, इवन सेल्फ क्रिटिकल होने की अपॉर्चुनिटी देनी है। इसी से ही जो है, बिकॉज ऑल दीज दे आर द हार्ट एंड सोल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। फर्दर ऐसे टीचर्स जो हैं वो सेल्फ लर्निंग को हमेशा इंफेसिस दें। सोशल कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ लर्निंग, किसी हर तरह के कंटेक्सचुअल जो है लर्निंग को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। So many things are there in the you can create situations, you can take help of child's experiences, you can take help of questions in each and every regard. So it is the duty of teacher education program that they should prepare their teacher trainees in this regard. टीचर जो है वो हमेशा व्यू करे कि लर्नर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। इसी क्लास में अगर लर्नर कुछ पूछता है, कुछ भी उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करना टीचर का काम है। लर्नर को जो है हमेशा उसकी ये मान के चलना चाहिए टीचर को कि जो पोटेंशियलिटीज है लर्नर में वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लर्नर, हम लोग क्लास में अनइंटेंशनली लर्नर्स को अलग अलग दायरों में डाल देते हैं कि ये विद्यार्थी ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या इस विद्यार्थी के लिए ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, बल्कि हमारी क्लास में फुल फ्रीडम होनी चाहिए, हमारी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और हमारे को ये मान के चलना चाहिए कि विद्यार्थी की पोटेंशियलिटीज फिक्स नहीं है and he is capable of development through experience. टीचर को फैसिलिटेटर का रोल जो है निभाना चाहिए, सपोर्टर का रोल निभाना चाहिए और हमेशा लर्निंग को इनकरेज करना चाहिए, लर्नर को इनकरेज करना चाहिए अपनी क्लास में। टीचर को कभी भी नॉलेज को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि दिस इज समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि ये सिर्फ बुक्स में है, बल्कि हमेशा अपनी क्लास में थ्रू डिस्कशन, through comparison, evaluation, explanation, contrast, interaction processes, learning को जो है प्रमोट करना चाहिए, लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए। अब आ जाता है बेस क्या है। तो ये जितनी भी हमने बातचीत की, इसमें से जो है कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का बेस बनाते हैं। इस बेस को डिस्कस करने से पहले मैं अगेन आपके साथ क्लासरूम इस बेस को मैं डिस्कस करना चाहूंगी विद एन एग्जांपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस, अ कांसेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस टू द स्टूडेंट्स। अब एक लैंग्वेज टीचर जो है वो क्लास में से कांसेप्ट एज सिंपल एज नाउन पढ़ाने के लिए जाता है, संज्ञा पढ़ाने के लिए जाता है। अब ट्रेडिशनल टीचर क्या करेगा, वो कक्षा में जाएगा और जाकर सबसे पहले विद्यार्थियों को कंसेप्ट के बारे में बता देगा और फिर उनको एग्जाम्पल्स बताएगा एंड देन उनको प्रैक्टिस देगा। इनफैक्ट बच्चों से ये एक्सेप्ट किया जाएगा कि वो डेफिनेशंस को बाय हार्ट क्रैम कर लें, उनको एग्जांपल्स बाय हार्ट जो है लर्न हो जाए और वो टीचर को सुना जाए। दिस इज व्हाट अ ट्रेडिशनल टीचर या जनरली इन द क्लासरूम टीचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द चाइल्ड। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इस तरह की टीचिंग के अगेंस्ट है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है, इसी एग्जांपल, यही जो लैंग्वेज का मैंने जैसे टॉपिक लिया है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि लैंग्वेजेस में नाउन से अगर नाउन ही हमने पढ़ाना है या संज्ञा हमने पढ़ानी है हिंदी में, तो सीधा डेफिनेशन बताने की जगह आप विद्यार्थियों को जो है, विद्यार्थियों के लिए में ये डिजायर इनकलकेट कीजिए। आप विद्यार्थियों
तो ऑलरेडी जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनको यूटिलाइज करके इस कंसेप्ट की ओर लेके आए। जैसे आप विद्यार्थियों को बोल सकते हैं कि अच्छा आज आप एक अपनी कॉपीज के ऊपर नोट कीजिए जितने भी नाम आपको आपके दिमाग में अभी आते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि ये नाम जो है ये जो नाम है किसी व्यक्ति के भी हो सकते हैं, किसी वस्तु के भी हो सकते हैं, किसी भी कोई भी नाम जो आपके दिमाग में आता है, जस्ट नोट डाउन द सेम ऑन योर नोटबुक्स। विद्यार्थी जो है अब ये तो उनको उनके एक्सपीरियंस है, दे नो देयर नेम, देयर फादर नेम, देयर मदर नेम, दे नो द नेम ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, ऑफ कोर्स दे विल राइट सो मेनी नेम्स ऑन देयर नोटबुक। अब उसके बाद टीचर जो है विद्यार्थियों को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता है। अब टीचर जो है वो बोलेगा कि अब आप जो ग्रुप आपका मैंने बनाया है, इस ग्रुप में आप लोगों ने जितने भी नाम लिखे हैं, अब आप उन नामों को एक दूसरे के साथ जो है डिस्कस करो और ऐड ऑन आर, और आप देखो इस डिस्कशन में आप देखो कि कहाँ इस इंटरेक्टिव प्रोसेस के में जहां भी आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं लिखा, यू ऐड ऑन, और एक जर्नलाइज्ड जो है आप जो है एक जर्नलाइजेशन बनाओ और लिस्ट बना लो नामों की। विद्यार्थी जो है ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे, हर किसी ने कोई ना कोई नाम लिखा है और वे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना लेंगे उन सभी नामों की। अब अगले स्टेप में जो है टीचर विद्यार्थियों को बोल सकता है कि अब आपने जो लिखा है, आप में से कोई एक विद्यार्थी आप जो कुछ भी आपने लिखा है उसको ब्लैक बोर्ड में आके लिख दे। राइट, अब अलग अलग ग्रुप में से विद्यार्थी आएंगे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे और साथ के साथ टीचर विद्यार्थी को बोलेगा आपने जो कुछ भी लिखा है उसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ऑफ कोर्स अभी विद्यार्थियों को इतना ही पता है कि टीचर ने उनको नाम जो है लिखने को बोला है, तो टीचर जो विद्यार्थी है वो बता देंगे कि मैंने अपने फादर का नाम लिखा है, फ्रेंड का नाम लिखा है, एनिमल का नाम, एंड सो ऑन। यहाँ पे टीचर जो है उनकी एक्सप्लेनेशन को बेस बना के और आगे उनको बताएगा कि ये जो आपने सब लिखे हैं ये सब क्या है, इनको हम जो है संज्ञा कहते हैं या इनको हम नाउन कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर अब कितने सारे नाम लिखे हैं, टीचर फिर विद्यार्थियों को एक काम दे सकता है। टीचर विद्यार्थियों को बोलेगा अच्छा अब आप ये जो नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो। आपको जो भी लगता है ना कि ये जो नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप उसको जो है उनको अलग करने की कोशिश करो। विद्यार्थी जो है वो अपने डिस्कशन वो आपस में डिस्कस करेंगे, वो टीचर से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि किस ढंग से हमने अलग करना है। टीचर भी जो है वो भी उनको प्रॉब कर सकता है, पर रोल जो है टीचर का यहाँ पे क्या है, अभी भी वो फैसिलिटेटर का रोल ही प्ले कर रहा है। तो उसने ऑलरेडी पहले बता दिया थोड़ा सा कि इसको हम ये जो हमने नाम लिखे हैं इनको हम नाउन कहते हैं। अब आगे जो है विद्यार्थी जो है वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे और इन कैटेगरीज को बेस बनाकर टीचर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जो है विद्यार्थियों को बता सकता है। हो सकता है वो जो कैटेगरीज बच्चों ने बनाई है वो वाकई नाउन की क्लासिफिकेशन के आसपास हो या उनसे अभी उतनी वो क्लासिफिकेशन बच्चों की इमेजिनेशन में कुछ अलग ही हो। टीचर को यहाँ पे थ्रू प्रॉबिंग क्वेश्चंस, थ्रू बच्चों को प्रॉब कर करके उनको लेके जाना है, वो जिस ओर लेके जाना चाहता है वो बताना चाहता है। फिर उसके बाद बच्चों ने जो क्लासिफिकेशन की, बच्चों ने जो कैटेगरीज बनाई, उनकी हेल्प से हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो गलत हो। टीचर जो है बच्चों को जो उन्होंने कैटेगरीज बनाई है उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में हेल्प करेगा। बेस क्या रहेगा उसकी डिस्कशन, एंड सिमिलरली वो क्लासिफिकेशन जो है नाउन की आपस में थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन सीख लेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इवेल्युएशन का टाइम होगा जहां पे टीचर इवेल्युएट करेगा। अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और इस फेज पे विद्यार्थी अपने आप को भी इवेल्युएट करेंगे। अब ये जो प्रोसेस था ये भी प्रोसेस जो है ये इस प्रोसेस में भी नाउन ही करवाया गया। पहले वाला जो मैंने बताया था जिसपे आते ही टीचर ने डेफिनेशन बता दी, फिर एग्जांपल्स बता दी, वो कंपैरेटिवली इजी था। यहाँ पे क्या है, टीचर के एफर्ट्स इन्वॉल्व थे, बट जो इस ढंग से जब हम इस नाउन को सीखते हैं या विद्यार्थी को सिखाते हैं तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो सीखा हुआ काम है वो थ्रू आउट लाइफ बच्चे को याद रहता है, राइट, और स्टूडेंट्स जो है फुली इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये जो हमने ये सब कुछ जो मैंने डिस्कस किया, इसी में
जो है विद्यार्थियों ने इंक्वायरी को भी यूज किया, विद्यार्थी जो है उन्होंने एक्ट किया, इमेजिनेशन को भी उन्होंने यूज किया, जब उन्होंने नाम लिखे, जब उन्होंने कैटेगरीज बनाई, उन्होंने कुछ नया इन्वेंट भी किया, जब उन्होंने इंटरेक्शन की, सो मेनी थिंग्स दे लर्न फ्रॉम वन अनदर। टेंटेटिव उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए, जब टीचर ने प्रॉप किए तो उन्होंने अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए, मींस उन्होंने टेंटेटिव सॉल्यूशन दिए। टीचर की जो है गाइडेंस में सॉल्यूशंस को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उनको रिजेक्ट भी किया, और पर्सनल रिफ्लेक्शन जो है उनका थ्रू आउट द प्रोसेस रहा, और उन्होंने एक कंसेप्ट को सीख लिया। दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज। इस ढंग से अगर हम पढ़ाते हैं विद्यार्थी को तो ऑफ कोर्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक्टिव रहता है, इफेक्टिव रहता है, लर्निंग भी जो है लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब ऐसे क्लासरूम में जैसे कि अभी जो मैंने डिस्कस किया, टीचर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर का रोल है कि टीचर आया, टीचर ने जो है, टीचर के पास नॉलेज है, उसको जो लगता है जॉन सी मेथोडोलॉजी से नॉलेज बच्चों तक पहुंचानी है वो पहुंचाएगा, वो पहुंचाता है। बच्चे जो है वो नॉलेज गेन करते हैं, कॉपीज के ऊपर लिखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, मेमोराइज करते हैं, और जो है बाद में टीचर को जब भी टीचर इवैल्यूएशन करता है तो बता देती है। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर से बहुत ज्यादा जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि देखिए, क्लास जब आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि नाउन क्या है, आपको पता उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और आपके पास बहुत सारा सिलेबस है जो कि आपको एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, तब दिल तो यही करता है कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं सीधा वो बच्चों को दे दूं। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि नहीं, अगर हम चाहते हैं कि क्लासरूम में बच्चे अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करें तो टीचर को अपना रोल चेंज करना पड़ेगा। टीचर जो है वो बच्चों की एक्टिविटीज को वॉच करे, लिसनर बने। बोलना इज वेरी इजी, टू बिकम अ लिसनर इज वेरी टफ। टीचर शुड लिसन टू द इंक्वायरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चनिंग का तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इनफैक्ट टीचिंग जो है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती अगर आप अपनी क्लास में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इन्वॉल्व नहीं करते। और ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में भी जो बच्चों के पास एक्सपीरियंसेस है, जो उनके पास नॉलेज है, आपने उस नॉलेज को बाहर लेके आना है। वो नॉलेज देने के लिए जो आप देने के लिए आए हैं, तो उसके लिए क्वेश्चंस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो टीचर जो है उसको उसमें क्वेश्चनिंग स्किल भी वेल डेवलप होना चाहिए, एंड टीचर शुड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो। अब आ जाता है कमिंग टू लेसन प्लान बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि जब हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यूज करना है क्लासरूम में, जब हमने प्लानिंग करनी है बिफोर गोइंग टू द क्लास, तो हमारे को हमेशा एज अ टीचर ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैं लेसन को प्लान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसमें मैंने विद्यार्थियों की प्रायर नॉलेज को यूटिलाइज करना है। मैंने ये मान के चलना है कि जो मेरे सामने विद्यार्थी बैठे हैं, they are having knowledge, and my role as a teacher is first and foremost I should have knowledge about my students। मेरी ऐसी रेपेट हो कि मुझे पता हो कि मेरा इन द क्लास, आप किसी भी क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, अगर वहां पे 40 विद्यार्थी हैं तो दे ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो उस डाइवर्सिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से विद्यार्थी किस श्रेणी में आता है, और आपको उनकी प्रायर नॉलेज को हमेशा यूटिलाइज करना है, ध्यान में रखना है व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान अ लेसन। और आपकी इंस्ट्रक्शन का गोल यही होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों को पहले से पता है, उसकी हेल्प से आपने उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग देनी है उस कंसेप्ट की जो रियल है, जो आप टीच करने जा रहे हैं। काफी सारे जो है मॉडल्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर के, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फोकस करके बने हैं। काफी सारे डिजाइन्स भी हैं। इवन ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी मॉडल को ही फॉलो करना है। इवन यू एज अ टीचर ट्रेनी यू कैन डेवलप योर ओन प्लान इन दिस रिगार्ड। लेकिन एक मॉडल, जो मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये बहुत पॉपुलर और बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल है इसी संदर्भ में। इस मॉडल का नाम है 5E कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, एंड दिस मॉडल इज गिवन बाय रॉजर बाइबी। ये जो 5E मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये एक इस चीज के ऊपर फोकस करती है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड के ऊपर फोकस करता है।
राइट। तो ये मॉडल जो है ये कहता है कि 5 चीज बहुत जरूरी हैं, और उन ईज को अगर यू एज अ टीचर इफ यू यूटिलाइज व्हेन यू आर प्लानिंग योर लेसन, तो आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। और जो 5 चीज का इस मॉडल में जिक्र किया गया है वो है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेल्युएट। अब हम एक एक करके इन सब के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहला जो है एंगेज। देखिए अभी जैसे पीछे अभी मैंने टॉपिक आपके साथ नाउन वाला डिस्कस किया, उसमें सबसे पहले टीचर ने क्या किया था, स्टूडेंट्स को, चाहे दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन बट एक जनरली जब हमने एग्जांपल ली तो वो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस उससे बच्चों को, विद्यार्थियों को एंगेज किया। तो रॉजर भी यही कहते हैं कि सबसे पहला जो काम है टीचर का, जब आप क्लास में गए हो तो आपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना है ताकि वो नया स्किल, नया आइडिया, नए कंसेप्ट में इंटरेस्ट हो। इसके लिए उन्होंने जो कई तरह की एक्टिविटीज सुजेस्ट की है, उन्होंने ये भी बताया है कि टीचर को क्या करना चाहिए और विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। जहां तक सुजेस्टेड एक्टिविटी है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन टीचर यूज कर सकता है, रीडिंग यूज कर सकता है, फ्री राइटिंग यूज कर सकता है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ, जैसे अभी इमेजिनेशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का हेल्प लिया था हमने उस प्रीवियस टॉपिक में, वो हो सकता है, स्टोरी टेलिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनीथिंग कुड बी डन। अब टीचर क्या करेगा, टीचर जो है, टीचर का रोल है एंगेज, विद्यार्थी को एंगेज करना है। एंगेज करने के लिए वो सबसे पहले विद्यार्थियों का इंटरेस्ट डेवलप करेगा, उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, उनको इंकरेज करेगा कि वो क्वेश्चंस पूछें, और उनसे उनको उसका वो हर वो एफर्ट करेगा जिससे जो उनके अंदर नॉलेज है उसको वो बाहर लेके आए। ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द, उसका जो रहेगा सारा का सारा मतलब क्या रहेगा, वही कंसेप्ट जो उनको इस एंगेजमेंट के थ्रू बाद में टीच करेगा। अब इसके इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी टीचर से क्वेश्चन, विद्यार्थी को पूरी फ्रीडम होगी कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछे। दूसरा जो स्टेप है दैट इज एक्सप्लोर। इस स्टेप में जो है टीचर, जब टीचर ने देखा कि विद्यार्थी अब कंसेप्ट में अच्छी तरह से एंगेज हो गए हैं, तो तब वो विद्यार्थियों को मौका देगा कि वो और ज्यादा एक्सप्लोर करें उसी कंसेप्ट को। अब इसके लिए जो है टीचर जो है इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, टीचर किसी कोई भी ऑथेंटिक रिसोर्स उनको पढ़ने को दे सकता है, टीचर उनको कोई मॉडल कंस्ट्रक्ट करने को कह सकता है, एनीथिंग कुड बी डन, राइट। और टीचर जो है, मतलब टीचर का मेन काम क्या है कि वो विद्यार्थियों को इनकरेज करेगा कि वो इकट्ठे काम करें विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ऐसा नहीं कि टीचर कहेगा दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, वो उनको फ्रीडम देगा, उनको उनके ग्रुप्स बना देगा, उनको ये बोलेगा कि इकट्ठे काम करो, इंटरेक्ट करो, एक दूसरे को ऑब्जर्व करो, एक दूसरे को सुनो, और ज्यादा, और अगेन क्वेश्चंस वो पूछता रहेगा ताकि स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करें और जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उनके एप्रोप्रिएट आंसर्स की ओर वो पहुंचे। ऑफ कोर्स टाइम लिमिट जो है यहाँ पे, टाइम का प्रॉपर टाइम जो है स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, फ्रीडम होगी स्टूडेंट्स के पास कि वो जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है, इस बार भी स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी फ्रीडम है कि वो आराम से सोचें और वो प्रिडिक्शंस लगाए, वो हाइपोथेसिस बनाए, और आपस में जब वो इंटरेक्ट करेंगे जो उनकी प्रिडिक्शंस हैं उनमें से वो कुछ को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को वो रिजेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करेंगे, एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी जजमेंट्स बनाएंगे, उनको सस्पेंड करेंगे, ये सब इस फेज में चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन। इस फेज के दौरान टीचर क्या करेगा, अब स्टूडेंट्स ने क्या, स्टूडेंट्स एंगेज हो गए, उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। अब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बोलेगा, this is the stage where students develop explanation of what they have already observed. जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो उसकी एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेंगे और वो टीचर को बताएंगे, वो टीचर को सुनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उन्होंने अब तक जो कुछ भी अपनी ऑब्जर्वेशन से या इंटरेक्शन से उन्होंने जो कुछ भी लिखा है या सोचा है उसके बारे में वो टीचर को बताएंगे। अब यहाँ पे जहां तक सुजेस्टेड एक्टिविटीज की बात है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स की एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन रहेगी, स्पोर्टिंग आइडियाज और एविडेंसेस रहेंगे, क्वेश्चनिंग रहेगी, डिस्कशन रहेगी, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, एरर एनालिसिस, ऑल दीज आर द सुजेस्टेड एक्टिविटीज।
टीचर क्या करेगा, बच्चों को इंकरेज करेगा कि जो कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस उन्होंने सोची हैं रिलेटेड टू व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड थ्रू द प्रॉपिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस दो पार्ट्स में हुए, स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करें। वो स्टूडेंट्स जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं हर पॉइंट को जस्टिफाई करने को भी बोलेगा कि सपोर्टिंग एविडेंस, आप ये कह रहे हो तो आप बताओ क्यों कह रहे हो, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दैट। एंड बच्चों उनसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, राइट। और जो आफ्टर स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन टीचर खुद फॉर्मली भी एक्सप्लेन करेगा। बट ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब वो एक्सप्लेन भी कर रहा है तब भी बेस क्या रहेगा, स्टूडेंट ने जो एक्सप्लेन किया उनकी एक्सप्लेनेशन से ही वो आगे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स उनको लेके जाएगा टुवर्ड्स द कंसेप्ट जो कि वो टीच करना चाह रहा है, करने जा रहा है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देने जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे, वो जहां तक हो सके जितने बढ़िया सॉल्यूशंस बढ़िया ढंग से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वो एक दूसरे को जो है लिसन करेंगे, तो वो कंप्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। और अपनी ऑब्जर्वेशंस को इवन वो रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज द स्टेप ऑफ इलैबोरेशन। अब इस स्टेप में क्या है, जो स्टूडेंट्स ने अब तक जो कुछ भी सीखा, उन्होंने जो कुछ भी जब वो एंगेज हुए, जब उन्होंने एक्सप्लोर किया, जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो कुछ भी उन्होंने सीखा, अब स्टूडेंट्स जो हैं अब उनको उस अंडरस्टैंड, दिस इज द स्टेप वेयर स्टूडेंट्स नीड टू सॉलिडिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग व्हाट दे हैव लर्न्ड टू समथिंग रियल। अब जो उन्होंने लर्न किया अब तक उसको किसके साथ जोड़ना है, उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, विद समथिंग रियल, विद द टॉपिक इन हैंड। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एक्सपेरिमेंटल, इंक्वायरी थिंकिंग, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, क्लासिफिकेशन, ऑल दीज आर द सजेस्टेड एक्टिविटीज। टीचर जो है वो बच्चों से एक्सपेक्ट करेगा कि जब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब वो टीचर जो है उनसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि दे यूज, टीचर ने भी कुछ कुछ बताया है, उनको कंसेप्ट की और लेके गए हैं। अब टीचर जो है वो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो उनको जो टीचर ने प्रीवियस स्टेप में बताया है उसको फर्दर जो है इलेबोरेट करे। वो इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को कि जो नॉलेज उन्होंने अब तक गेन की है कंसेप्ट्स के बारे में, स्किल्स के बारे में, वो उसको अप्लाई करें और एग्जांपल्स दें। स्टूडेंट्स को वो ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस की ओर लेके जाएगा। अगेन क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो और ज्यादा क्लैरिटी गेन करें रिलेटेड टू द कंसेप्ट। जैसे कि व्हाट यू ऑलरेडी नो, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर, राइट। तो बच्चे जो हैं वो जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको रिलेट करेंगे, डिसीजंस लेंगे, कंक्लूजन्स तक पहुंचेंगे। जो कुछ भी उन्होंने जो पहले उनको पता था और जो उन्होंने नया सीखा है उसके बेसिस पे वो उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ओवरऑल इस स्टेज तक स्टूडेंट्स को वो जो कंसेप्ट टीचर टीच कर रहा है, जो टीचर ने क्लास में टीच करना है, उसकी इलेबोरेशंस का डिटेल में पता चल जाएगा। एंड लास्ट जो है स्टेज दैट इज सजेस्टेड बाय दिस मॉडल इज इवेल्युएट। अब टीचर जो है इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएशन जो है इसमें ऑफ कोर्स टीचर विल टेक हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग, टीचर कैन आल्सो टेक अप हेल्प ऑफ सम असेसमेंट टूल और कोई टेस्ट की हेल्प वो ले सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी असेसमेंट होगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो जब टीचर उनसे क्वेश्चन पूछेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, तो स्टूडेंट्स दे विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। इससे टीचर को भी जो है क्लियर होगा कि स्टूडेंट्स ने कहाँ तक क्या क्या गेन कर लिया है, एंड इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर हिम। उसको ये पता चलेगा कि कहाँ पे अभी भी जरूरत है और क्लैरिटी की, या कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। एंड स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रोसेस के दौरान वो खुद को भी इवैल्यूएट कर लेंगे कि प्रीवियसली उनको ये पता था, टेक्निकली इसको ये कहा जाता है, ये इसकी डिटेल है। सो सेल्फ इवैल्यूएशन जो है वो भी हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स व्हिच आर सजेस्टेड बाय 5E model. Now I have prepared a lesson plan based on this model. अब जब आपने lesson planning करनी है, before showing you detailed lesson plan, I will discuss with you all these
5 steps by taking an example of a 6th class topic. This topic is of science subject and the topic is fermentation. ठीक है, अब fermentation topic जो है टीचर ने विद्यार्थियों को सिखाना है और उसने 5E मॉडल की हेल्प से सिखाना है। उसने ये सोचा है कि वो क्लास में विद्यार्थियों की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। फर्मेंटेशन जो है उसके बारे में विद्यार्थियों को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू काफी कुछ पता है। उस नॉलेज की हेल्प से उनको एग्जैक्टली जो रियल कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन उसकी ओर लेके जाएगा। तो क्या क्या कर सकता है, पहले तो वही पहली स्टेज है एंगेज। सबसे पहले जो है टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एंगेज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यही टॉपिक जब विद्यार्थियों को सिखाना है तो आप जो है टीचर वो विद्यार्थी को एक स्टोरी सुना सकता है। स्टोरी सुना के वो विद्यार्थी को एंगेज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट को कह सकता है कि एक बार की बात है, मिस्टर रमेश अपने घर से एक बाउल कर्ड का लेके घर से निकल पड़े। उनके घर के पास एक रिवर थी। उन्होंने क्या किया, उस कर्ड को उस रिवर में डालना शुरू कर दिया। जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनका दोस्त उनके पास से गुजरा, तो बहुत हैरान हुआ। उसने बड़े हैरानी से मिस्टर रमेश से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो रमेश जी। तो रमेश जो है उसने बोला कि मैं वही कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो, मैं कर्ड पानी में डाल रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने उसको व्यंग करके बोला कि क्या आपको लगता है कि दही पानी में डालने से ये जो है ये पूरी की पूरी जो रिवर है ये दही की बन जाएगी। तो मिस्टर रमेश कहते हैं कि मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, पर कितना बढ़िया हो अगर ऐसा हो जाए। अब ये क्या है, एक स्टोरी है, उन्होंने एक इमेजिनेटिव स्टोरी टीचर ने क्लास में नरेट कर दी। अब टीचर जो है स्टूडेंट्स को बोलेगा कि मिस्टर रमेश जो कर्ड जब वो रिवर में डाल रहे थे, पानी में डाल रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ही कर्ड, थोड़ी सी कर्ड पानी में डालने से, कर्ड का एक स्पून पानी में डालने से क्या कर्ड बन जाती है? और अगर आपको लगता है बन जाती है तब भी एक पेज पे लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं बनती तब भी पेज के ऊपर लिखिए। और साथ के साथ आप ये भी मुझे बताइए कि क्या चीज है जिसमें हम एक स्पून कर्ड का डालें तो कर्ड बन जाती है। अब स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कर्ड जो है इसका प्रोसेस हो सकता है उन्होंने अपने घर में देखा हो सकता है उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो जब उनकी मदर जो है घर में ये सब कुछ करती हैं, कर्ड बनाती हैं। हो सकता है उन्होंने ना एक्सपीरियंस किया, बट विद्यार्थी जो है उनको अब टीचर ने एक टास्क दे दिया कि वो पेज के ऊपर नोट करें कि उनको क्या लगता है पानी में डालने से बनेगी या नहीं, और वो दूसरी क्या चीज है जिसमें डालेंगे तो बन जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लोर। अब इस स्टेज पे टीचर क्या करता है, टीचर क्या करेगा, विद्यार्थियों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। जब वो विद्यार्थियों को ग्रुप्स में डिवाइड करेगा तो विद्यार्थियों को फिर से वो यही टास्क देगा, वो बोलेगा कि अब आपस में आप डिस्कस करो आपने जो लिखा, और साथ में वो और प्रॉपिंग क्वेश्चंस उनसे पूछेगा। उनको बोलेगा कि आपने जो लिखा आपस में डिस्कस करो, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो कि क्या वाकई ही पानी में एक स्पून ऑफ कर्ड डालने से कर्ड बनती है तो क्या कंडीशंस हैं जिनमें बनती है, प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऐसे ही वो क्या चीज है जिसमें डालने से कर्ड बनती है तो कैसे बनती है, क्या कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू यू, और आप उस प्रोसेस के बारे में लिखिए। अब जब बच्चे ग्रुप्स में बैठेंगे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनमें से कुछ बच्चे ऑफ कोर्स ये जब ग्रुप्स भी बनाने हैं तब जैसे कि मैंने पहले कहा कि टीचर को अपने क्लास के हर एक विद्यार्थी के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मेरे क्लास में डाइवर्सिटी है, तो हर ग्रुप में हर तरीके का विद्यार्थी। अब जब विद्यार्थियों को मौका मिलेगा कि वो आपस में अपनी नॉलेज को, अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर करें, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को कुछ ना पता हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को डेफिनेटली, क्योंकि ये बड़ा कॉमन प्रोसेस है, कुछ ना कुछ पता होगा, दे ऑल विल नोट डाउन देयर ऑब्जर्वेशंस ऑन द नोटबुक। अब आ गया अगला प्रोसेस। अब टीचर जो है विद्यार्थियों को बोलेगा आपने जो कुछ भी लिखा है उसको मेरे साथ शेयर करो। अब विद्यार्थी जो है अपनी जो कुछ भी उन्होंने उस नोटबुक पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायर नॉलेज वो उसको टीचर के सामने पेश करेंगे। टीचर जो है विद्यार्थियों के रिस्पॉन्सेस को, जो कि
कुछ हद तक करेक्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट भी हो सकते हैं। उनकी हेल्प से और प्रॉपिंग क्वेश्चंस पूछ के उनको कंसेप्ट की ओर लेके चले, और धीरे धीरे जब विद्यार्थी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बाद टीचर जो है इसी विद्यार्थी की एक्सप्लेनेशन को बेस बनाकर कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन को खुद से एक्सप्लेन कर दे। पर ये बात ध्यान में रखिए, इस स्टेप में भी टीचर ने ये नहीं कि खुद से सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है, उसने विद्यार्थियों ने जो लिखा है, जो एक्सप्लेन किया है, उसको बेस बना के अगर उसको लगता है कि उसमें से कुछ हद तक कुछ चीजें करेक्ट है तो वो करेक्शंस से शुरू करके, या उसको लगता है कि इसमें कुछ भी, अगर उसको लगता है कि विद्यार्थियों ने कुछ भी फ्रूटफुल नहीं अभी लिखा तो मोर प्रॉप्स देके ताकि वो कुछ फ्रूटफुल लिखे, विद्यार्थियों की एक्सप्लेनेशन से वो शुरू करके ले जाएगा फॉर्मल कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन की ओर। एंड उसके बाद जब उसने फॉर्मली बता दिया कि ये सब कुछ जो है दिस इज फर्मेंटेशन, फर्दर इसको वो इलेबोरेट करेगा और क्वेश्चंस इसमें वो पूछ सकता है, जैसे कि विद्यार्थियों से पूछ सकता है कि व्हाई डज डफ व्हिच इज फर्मेंटेड स्मेल, जब हम आटा जो है जब उसको फर्मेंट वो हो जाता है तो उसमें से स्मेल क्यों आती है, ऐसा आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है, ग्रुप में डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो, यानी कि वो विद्यार्थियों की जो नॉलेज है रिलेटेड टू फर्मेंटेशन उसको और ज्यादा इलेबोरेट कर रहा है। एंड जब टीचर को लगे कि अब वो जो नॉलेज स्टूडेंट्स को देना चाहता था उसने दे दी है, ये इलेबोरेट, जब वो नॉलेज को इलेबोरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, तो साथ के साथ डिटेल्स ऑफ द टॉपिक जो है उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता जाएगा। he himself will tell details to the students, of course the base will be the students knowledge। and last but not least फिर टीचर जो है with the help of open ended questions इवेलुएट करेगा कि स्टूडेंट्स ने कितना कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, और ये जो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऐसा होगा जिसमें विद्यार्थी भी अपने आप को इवेलुएट कर पाए। अब इसी मॉडल को बेस बना के एक लेसन प्लान, अभी जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट कि कैसे इस अप्रोच को टीचर क्लास में यूज कर सकता है। अब जो है अगेन एक और लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ। ये लेसन प्लान मैथमेटिक्स का है। इसमें टीचर ने जब बिफोर गोइंग टू द क्लास जब लेसन को प्लान करना है तो क्या क्या of course the steps will be the same of the same model I have utilized for this purpose also। तो वो प्लानिंग में जो स्टेप्स टीचर फॉलो करेगा वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जब आपने मॉडल लेसन प्लान बनाना है, जब आपने लेसन प्लान इस संदर्भ में बनाना है विच इज बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो आप क्या करोगे, प्रोफाइल लिखोगे जैसे कि हम सभी लेसन प्लान्स में लिखते हैं, विद्यार्थी के प्रोफाइल के बारे में लिखोगे जिसमें स्कूल का नाम, टीचर का नाम, जो है यहाँ पे विद्यार्थी है बोल रही हूँ टीचर ट्रेनिंग, राइट। अगर टीचर ने बनाना है तो वो अपना नाम, राइट, क्लास जिस क्लास के लिए बनाया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है, विद्यार्थी की जो एवरेज एज है, कौन सा यूनिट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन, डेट एज वेल एज टॉपिक, ये सब इस प्रोफाइल में रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जब आप लेसन प्लान बनाओगे वो है जनरल एम्स। सबसे पहले आप जो है जैसे हम सभी लेसन प्लान्स में मेंशन करते हैं, टीचर जो है वो मेंशन करेगा जनरल एड्स। जनरल एड्स के बाद नेक्स्ट स्टेप जनरल एड्स के अंदर वो सभी एड्स आ जाते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग, किसी भी टीचिंग के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है जो कि होने ही चाहिए क्लास में, जैसे चॉक बोर्ड हो गया, चॉक हो गया, डस्टर हो गया, एंड सो मेनी जनरल एड्स दे आर रिक्वायर्ड, पॉइंटर, स्पेसिफिकेट। इस केस में मैंने जो स्पेसिफिकेट लिया है, स्पेसिफिकेट्स जो है देन आपको लेसन प्लान में मेंशन करने की जरूरत है, स्पेसिफिकेट आ जाता है वो एड तो आप यूज करोगे इन ऑर्डर टू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव। अब इस केस में जो स्पेसिफिकेट यूज किया गया है वो है आइटम्स विद प्राइस टैग। नेक्स्ट आ जाता है जनरल एम। अब इस लेसन में जो जनरल एम जो टीचर का रहेगा वो, बिकॉज दिस इज अ प्लान, दिस इज अ लेसन ऑफ मैथमेटिक्स, तो जनरल एम जो सभी मैथमेटिक्स टीचर्स अपने मन में लेके चलते हैं when they teach any concept to the student is to develop mathematization of child's thinking, right। फिर उसके बाद then comes specific objectives।
Specific objectives means the objectives which the teacher will achieve, wants to achieve through her teaching. तो इसमें आ जाएंगे सब specific objectives इस तरीके से related to the topic in our hand. The topic is profit and loss. So specific objectives can be students will know the terms profit, loss, cost price, selling price, understands relationship of cost price and selling price with profit and loss, applies concept of profit and loss, and analyze, will be able to analyze profit and loss, evaluate profit and loss in a day, right? So these are some of the specific objectives जो कि teacher अपने lesson plan में frame करेगा. अप्रोच, उसके बाद लेसन प्लान में अप्रोच को मेंशन किया जाएगा. और अप्रोच जो है जैसे कि हम लोगों को पता है आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. तो जो अप्रोच मेंशन होगी दैट इज टीचर विल मेंशन दिस अप्रोच ऑन द लेसन प्लान नोटबुक, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और ब्रैकेट में बिकॉज लेसन जो प्लान किया गया है ऑन द बेस ऑफ 5E मॉडल है तो वो भी मेंशन कर देगा. एंड मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड like demo in the present lesson. The methods which are used are demonstration, explanation and problem solving. फिर उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन पार्ट आ जाएगा जिसमें जो है टीचर जब आपने लेसन प्लान बनाना है तो एज अ टीचर आप लोग कॉलम्स बनाएंगे. ये कॉलम्स जो है मैंने इस केस में 5 बनाए हैं, आप 6 भी बना सकते हो. देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, एज सच कुछ भी फिक्स नहीं है. जब लेसन प्लानिंग की बात आती है तो ये अप्रोच ही इंडिविजुअल अप्रोच है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता. तो इन प्रेजेंट लेसन प्लान मैंने जो है 5 कॉलम्स बनाए हैं, ऑफ कोर्स बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस 5E अप्रोच, जिसमें पहला जो है कॉलम रहेगा E, दूसरा जो है एक्टिविटी जो करने जा रही हूँ मैं, टीचर का रोल क्या रहेगा, स्टूडेंट का रोल क्या रहेगा, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड. ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड का आप अलग अलग कॉलम भी बना सकते हो. पहला जो है एंगेज. अब यहाँ पे जो टॉपिक इन हैंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए जो एक्टिविटी जो यूज करने का सोचा है वो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेमोटाइजेशन. अब क्या है टीचर का रोल, जो टीचर ने क्लास में परफॉर्म करना है वो टीचर रोल में आप लिखोगे. जैसे इस केस में जो सोचा गया है कि टीचर जो है वो अपनी कक्षा के 2 विद्यार्थियों से ए एंड बी, उनको बोलेगा कि वो डेमोस्ट्रेट करें एक आइटम का जो है प्राइस, वो डेमोस्ट्रेट करें सेलिंग ऑफ एन आइटम जिसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा रखा है कि ये आइटम जो है 10 रुपए. अब विद्यार्थियों में से ए जो है विद्यार्थी, उसको वो बोल देता है कि तुम्हें सेलर का रोल जो है निभाना है, और विद्यार्थी बी को वो बोल देता है कि तुम्हें जो है बायर का रोल निभाना है. और बाकी सभी विद्यार्थी जो हैं उनको वो बोलता है कि आप सभी ऑब्जर्वर्स. अब टीचर जो है क्वेश्चंस जो है वो लेसन प्लान में लिखेगा और क्लास में भी वो विद्यार्थियों से क्वेश्चंस पूछेगा ताकि उनको एंगेज किया जा सके इस एक्टिविटी में. वो स्टूडेंट से पूछेगा कि हाउ मच ए पेड फॉर द आइटम. जो ए है, जो सेलर है, उसने ये जो जिसके ऊपर प्राइस टैग 10 रुपए लिखा है, उसने आपको क्या लगता है कितना पे किया होगा. एंड हाउ मच बी मे हैव पेड फॉर द आइटम. आपको क्या लगता है बी ने, जो बायर है, उसने कितना पे किया होगा, क्या वो 10 से ज्यादा या 10 से कम. अब विद्यार्थी जो है उनके विद्यार्थी के रोल में वो सब कुछ जो टीचर कह रहा है ऑफ कोर्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली विद्यार्थी कर रहे हैं. स्टूडेंट जो है स्टूडेंट एक वो सेलर का रोल प्ले कर रहा है, दूसरा बायर का रोल प्ले कर रहा है, बाकी स्टूडेंट्स जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं. ब्लैक बोर्ड राइटिंग के ऊपर जो है टीचर नोट डाउन कर देगा वो जो प्राइस आइटम का है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर को लिख देगा. राइट. तो लेसन प्लानिंग में आप इस ढंग से जो है इसको लिख दोगे एंड सेम विल हैपन इन द क्लास. उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद सेकेंड डी, उसी प्लानिंग में जब आपने टेबल बनाना है फर्स्ट डी के बाद साथ में आ जाएगा सेकेंड डी. अब बच्चों को पहला जो था उसने एंगेज कर दिया थ्रू बाय दिस ड्रामेटाइजेशन प्रोसेस, जिसमें ए और बी ने रोल प्लेइंग किया, बाकियों ने ऑब्जर्व किया, टीचर ने क्वेश्चन भी पूछे. सो एवरीबॉडी इन द क्लासरूम इज एंगेज्ड. राइट. अब क्या है नेक्स्ट वाली में, क्या है टीचर अब हेल्प कर रहा है विद्यार्थी को, उससे हेल्प करनी है कि वो और एक्सप्लोर करे इस कंसेप्ट को. अगेन व्हेन यू विल बी राइटिंग द सेम इन द लेसन प्लान, तो सेम कॉलम्स विल बी देयर. पहले में यू विल राइट द सेकंड, जो इसका स्टेप है वो है सेकंड ई एक्सप्लोर. फिर उसके बाद आप जो है एक्टिविटी
जो भी आपने करवानी है, लाइक इन केस जो है इन्वेस्टिगेशन इस एक्टिविटी को वो मेंशन कर दिया। टीचर जो जो कर रहा है वो टीचर रोल में आ जाएगा, स्टूडेंट जो जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट रोल में आ जाएगा। कर रहे हैं मतलब व्हेन यू आर प्लानिंग, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये करूंगी तो बच्चे विद्यार्थी ये सब करेंगे, वो जो भी है एक्सपेक्टेशंस वो स्टूडेंट रोल में आ जाएंगी। एंड ब्लैकबोर्ड समरी में ब्लैकबोर्ड समरी एज वेल एज टीचिंग एड अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन, राइट। अब क्या है यहाँ पे, क्या है टीचर ने जो है विद्यार्थियों को रोल असाइन कर दिए, अब और ज्यादा एक्सप्लोर करें वो, इसके लिए वो विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो इन्वेस्टिगेट करें। अब स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्लास में और आइटम्स वो प्रोवाइड कर देगा, अब उनके ऊपर भी प्राइस टैग लगा रखे हैं, और उनको वो बोलेगा कि आप इन आइटम्स को जो है दे विल बी आस्क्ड टू एंटिसिपेट देयर सेलिंग प्राइस एंड वर्क ऑन द प्राइसेस एट व्हिच द आइटम्स मे हैव बॉट। सेम वही क्वेश्चन रहेगा कि क्या इनका सेलिंग प्राइस है और आपको क्या लगता है कि आइटम्स कितने को प्राइस में खरीदी गई हैं, ब्रॉट ऑफ कोर्स बाय द शॉपकीपर। जो विद्यार्थी हैं वो इन आइटम्स के प्राइस टैग को देखेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जहां तक ब्लैक बोर्ड वर्क या टीचिंग एड चार्ट के ऊपर भी आप उन आइटम्स के जो प्राइसेस है उनको डिस्प्ले कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हो आपकी मर्जी। नेक्स्ट इज फिर उसके बाद लेसन प्लान में तीसरा ई लिख दोगे। तीसरा ई क्या है? एक्सप्लेन। अब यहाँ पे जो है एक्टिविटी क्या रहेगी, जब एक्सप्लेन है तो स्टूडेंट्स की एक्सप्लेनेशन एज वेल एज लेटर ऑन टीचर्स एक्सप्लेनेशन एंड सपोर्टिंग एविडेंसेस। अब टीचर रोल, स्टूडेंट रोल अगेन इन द लेसन प्लान यू विल बी राइटिंग इन द कॉलम्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम। और टीचर रोल में क्या आ जाएगा, टीचर जो है विद्यार्थियों से पूछेगा, उन्होंने जो जो ऑब्जर्व किया वो उसको एक्सप्लेन करे। और टीचर का यहाँ पे रोल फैसिलिटेटर का रहेगा, विद्यार्थियों ने जो भी ऑब्जर्व किया वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। टीचर उनको फैसिलिटेट करेगा कि वो जिस कंसेप्ट को वो पढ़ा रहा है वो उसकी ओर लेके जाए। स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे जो कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, राइट। वो जो भी उन्होंने एज्यूम किया कि कितने में जो है शॉपकीपर उसने खरीदा होगा, वो आपस में डिस्कस भी करेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टीचर्स से ताकि उनको और ज्यादा क्लैरिटी। और लेटर ऑन जो टीचर है वो विद्यार्थियों की एक्सप्लेनेशन को बेस बनाकर टीचर जो है वो बताना चाहता है रिलेटेड टू दिस जो है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देगा। अब आ गई अगली स्टेज। अब ये स्टेज क्या है? इलेबोरेट। इस स्टेज में क्या है, जब लेसन प्लान होगा तो अगेन आपका वही चला जा रहा है टेबल और वही कॉलम्स हैं। उनमें पहले कॉलम में आप जो है 4th ई लिख दोगे, उसका जो नाम लिख दोगे, इलेबोरेट लिख दोगे। उसके बाद एक्टिविटीज आप लिखोगे। एक्टिविटीज प्रेजेंट केस में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, थिंकिंग है, कंपैरिजन है। जहां तक टीचर रोल की बात है, टीचर जो है उसको जो है वो स्टूडेंट्स को और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए उत्साहित करेगा। अगेन इस इलेबोरेशन के लिए भी टीचर का रोल क्या रहेगा, टीचर को फैसिलिटेट करना है, टीचर को प्रॉब करना है बच्चों को, ताकि अब उन्होंने काफी कुछ ऑब्जर्व कर लिया है, काफी कुछ उन्होंने बता दिया है, थोड़ा सा टीचर ने भी एक्सप्लेन कर दिया और इस कंसेप्ट को डिटेल में बताने से पहले और प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछेगा। टीचर बच्चों से पूछ सकता है कि व्हाई द सेलर सेल आइटम्स एट हायर प्राइस देन ही मे हैव पेड फॉर। क्यों बेचते हैं? अगेन बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है, वो मार्केट में जाते रहते हैं, वो आइटम के ऊपर जो प्राइस लिखा है ज्यादा में भी कई बार मिलता है, कई बार वो बार्गेनिंग करके कम में भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे टीचर को जो है जवाब दें। What will happen if the seller sells an item at the lower price than he may have purchased it? जितने में उसने परचेज किया, अगर उसमें से उससे वो कम प्राइस में बेच रहा है तो क्या होगा? ठीक है। हाउ, अब टीचर अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा मनी द सेलर हैज अर्न्ड आफ्टर सेलिंग द आइटम। तो इन ये जो स्टूडेंट्स के आंसर्स हैं इनको बेस बना के फिर टीचर इलेबोरेट करेगा पूरा का पूरा कंसेप्ट, प्रॉफिट जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू कंसेप्ट, जो भी वर्किंग फॉर्मूलाज हैं, लाइक प्रेजेंट केस में प्रॉफिट लॉस, उससे रिलेटेड और जो कंसेप्ट्स हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जो फॉर्मूलाज हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला, everything will be discussed in detail. Teacher will write the same on the blackboard. Teacher can even display chart for the same, right? और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वो अपनी पुरानी नॉलेज के साथ नया जो गेन किया उसको कंपेयर भी कर रहे हैं। और इस ढंग से जब बच्चे नॉलेज को गेन करते हैं तो उनको प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
फिर टीचर जो है इवेल्युएट करेगा एंड ऑफ कोर्स फॉर इवेल्युएशन क्वेश्चनिंग जो है दिस इज द बेस्ट टूल एंड इवेल्युएशन के दौरान जो है टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। टीचर जो है टीचर के क्वेश्चंस जब वो पूछेगा अगेन उसमें भी स्टूडेंट्स दे विल बी अलाउड टू थिंक freely, they can even interact and students जो है they will try to answer the questions and they will provide supporting evidence for whatever they are answering and यहाँ पे टीचर को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस के बारे में भी पता चल जाएगा एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स जो है वो भी अपनी सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि उनको जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें उनको पहले क्या पता था, क्या उन्होंने नया गेन किया। तो इस ढंग से so this is the format which is required to be followed as far as the presentation of this particular topic with the help of model 5 is concerned. एंड लास्ट पे वही स्टेप रहेगा जो जनरली फॉर्मल लेसन प्लान में रहता है, टीचर विद्यार्थियों को होम असाइनमेंट दे देगा एंड होम असाइनमेंट के बाद एक हम एडिशनल स्टेप इसमें लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन वाले कॉलम में टीचर विल राइट हिज और हर रिफ्लेक्शंस अबाउट द सक्सेस of the content which he or she has taught in the class. Of course, these reflections will be written later on after teaching. तो वो reflections जो हैं वो उसको एक आइडिया दे देंगी कि कहाँ पर जो है उसका लेसन प्लान की क्या स्ट्रेंथ रही, कहाँ पे उसको लगता है कि चाहे उसने ये चीज सोच के, जब भी हम प्लानिंग करते हैं हम सोच के करते हैं कि मैं ये करूंगी तो विद्यार्थी ऐसा करेंगे, कहाँ पे ये रिफ्लेक्शन टीचर को एक डायरेक्शन देगी कि कहाँ पे प्लानिंग को चेंज करने की जरूरत है एंड ऑटोमेटिकली अगला लेसन प्लान जो है वो उन जो है रिफ्लेक्शन के बेसिस पे और ज्यादा बढ़ेगा। So this is a format of the lesson plan which you can use when you are preparing lesson plan on the basis of constructivist approach. I think so. Concept is clear to participants. And so in the end, I just conclude my talk by saying कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक सोच है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये एज ए टीचर हम लोगों को इंकरेज करती है, हम लोगों को मोटिवेट करती है, रेदर मैं कह सकती हूँ अगर ज्यादा मैं प्रिसाइजली करूँ हम लोगों को सेंसिटाइज करती है कि हमारा रोल सिर्फ ये नहीं है कि हम कक्षा में जाएं, सामने खड़े हो जाएं और विद्यार्थी जो डेस्क के ऊपर बैठे हैं उनको हम नॉलेज दें, ये हमारा रोल नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिखाना हमें है। डेफिनेटली हम जब टीचर्स हैं हमारे पास नॉलेज है, हमारे को वो नॉलेज स्टूडेंट्स को देनी है, लेकिन वो नॉलेज कैसे देनी है वो हमारे को फिट करनी है उसमें जो कि ऑलरेडी उनको नॉन है। हमारे को हर वो अपॉर्चुनिटी लर्नर को देनी है कि वो अपनी नॉलेज को खुद से बिल्ड कर सके। हमारे को लर्नर को हेल्प करना है कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके और इसके लिए क्या है हमारे को उनकी हमेशा डेवलपमेंट की और जो है हमारे को हर वो कॉन्टेक्स्ट को यूटिलाइज करना चाहिए, उनकी प्रायर नॉलेज को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि वो दे कीप ऑन एडिंग द नॉलेज व्हिच ऑलरेडी दे पोसेस। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक बिलीव है जिसमें स्टूडेंट्स को आप अलाउ करो कि वो एंगेज हो सके करें क्लास में, वो क्लास में उनको फ्रीडम हो कि वो इंटरेक्ट करें, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बहुत कम क्लास है जहाँ पे विद्यार्थियों को ये फ्रीडम रहती है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। आप विद्यार्थियों को मौका दो कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और इस ढंग से जो नॉलेज विद्यार्थी गेन करेंगे, इस ढंग से जो इंफॉर्मेशन वो गेन करेंगे वो आई एम क्वाइट श्योर कि टिल द जब वो लाइफ की रोड के ऊपर चलेंगे तो दैट इज गोइंग टू पे देम। जबकि मेमोराइजेशन रट्टा लगा के जो भी नॉलेज उन्होंने गेन की है वो शायद उनके उतना काम ना आ सके। सो we as a teacher we should try to focus upon providing experiences to the students. We should try to provide maximum freedom to our students. We should help them to construct their knowledge by providing them best possible environment. That's all about my presentation. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Now we are having some questions which participants are asking.
first question is by Nandini, and she is saying that is it compulsory to use an aid for each E? Can you repeat the question? Is it compulsory to use aid, teaching aid for each E? We are talking about 5 E, na? She is asking, is it compulsory to use aid, teaching aid for each E? Beta, what I feel is the use of teaching aid, it depends upon the situation. It is always, we use teaching aid to make our teaching effective. If you feel that you feel that your teaching aid will help you to engage the student, will help your students to explore the topic, so take help of teaching aid. But as such, there is no compulsion. Of course, you can use. There is always a flexibility in that. There is no compulsion in any regard. But of course, if you use teaching aid, that is always going to pay you. And second question is by Lovepreet Kaur. She is asking, is it possible to implement this lesson in one lecture that is of 45 minutes? Kindly repeat, I'm not getting the question. Is it possible to implement this lesson plan in one lecture that is of 45 minutes? Yeah, definitely it is possible. It is definitely it is possible to implement this. The only thing that is required is that your planning part should be such. You need to plan it that this is the time constraint in 40 minutes period. These are the activities. Of course, you can reduce the content part. कि आप हम सोच के चलते हैं जब क्लास में हमने पढ़ाना है कि हम कंटेंट जो है बड़ा डिटेल्ड ना पढ़ा के उसको हम शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम हम उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं. पर बिल्कुल हम इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं. इसके थ्रू विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं एक सिंगल क्लास में, और एक सिंगल क्लास में ही पढ़ाना चाहिए. अदरवाइज जो इस अप्रोच की जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो खत्म हो जाएगी. There is one question from Neha Yoshi. She is asking, ma'am, when we allow students to discuss some topics, then after some time class become very noisy and discussion gets out of track. How to handle such situations? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि क्लास में जो है when we will allow students to participate, when there will be activity, when students they will be participating, they will be attracting. तो क्लास में जो है नॉइस तो रहेगा, तो वो नॉइस के लिए टीचर को एक्सेप्टेबल रहना चाहिए. बाकी टीचर जो है उसका रोल ही यही है कि उसको क्लास में स्टेज सेटर का रोल प्ले करना है. उसको स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व करके रखना चाहिए कि ये जो फैक्टर ऑफ नॉइस है इसको वो हैंडल करे. एक जो एफिशिएंट टीचर है वो बड़े आराम से बच्चों को एंगेज करके इसको कंट्रोल कर सकता है. हाँ, कंपैरेटिवली ये बात तो है कि जो जैसे कि ट्रेडिशनल क्लास रहती है जहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट्स जो बिल्कुल साइलेंट हैं और टीचर ही बस बोल रहा है, वो तो नहीं रहेगा और वो होना भी नहीं चाहिए. ये अप्रोच इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करती. ये अप्रोच यही कहती है कि फ्रीडम दो, बच्चे क्लास में बोले, बच्चों को इंटरेक्ट करने दो, बच्चों से एक्टिविटीज करवाओ, तो वो सब कुछ तो होगा. यस, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वुड बी हैंडल्ड. One question is from Divya Kalra. She is asking, will this approach is applied on exceptional children? Can we apply this approach on exceptional children? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के ऊपर भी देखिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की भी कई कैटेगरीज आ जाती हैं. एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में गिफ्टेड आ जाते हैं, एवरेज आ जाते हैं, जो है बैकवर्ड चिल्ड्रन आ जाते हैं. जैसे मैंने बोला कि क्लासरूम डाइवर्सिटी तो रहती है, तो अगेन यस, दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड ऑन द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. एंड अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है तो उसको भी आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू पढ़ा सकते हो. हाँ, उसको पढ़ाने के लिए यू नीड ऑफ कोर्स द सिचुएशंस ऑफ कोर्स विल बी डिफरेंट टू हैंडल द पर्टिकुलर. लाइक इफ इन योर क्लास यू आर हैविंग अ स्टूडेंट हु इज डिसलेक्सिक और डिसकैल्कुलिक और डिसग्राफिक, तो आपको थोड़ा सा changes लाने पड़ेंगे. But yes, of course, this is a very good approach. You can tackle all sort of exceptions in your class by making use of this approach. There is one more question. I think you have already answered that question. That was, what about languages? Is it possible to use this approach in languages? I think you have already explained with the I help have of already example. discussed the first example that I have given you. It was from the field of language only.
द टॉपिक नाउन या संज्ञा, ये लैंग्वेज की फील्ड का ही था, ठीक है। तो लैंग्वेजेस, साइंसेस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट आप इस अप्रोच के थ्रू पढ़ा सकते हो। बात ये है कि आपको जब आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपको खुद को बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्लान एक्टिविटीज जो कि क्लास में आपको करवानी है। फिर क्योंकि ये अप्रोच ऐसी है जो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करती है, तो हम लोग कई बार खुद सोच के जाते हैं, क्लास में हमारे को वैसा माहौल नहीं मिलता, प्लानिंग हमारी कुछ रहती है, क्लास में ऑल टुगेदर हम ये सोचते हैं कि बच्चा ये रिस्पॉन्स करेगा या ऐसा कुछ होगा, ये बेस बनेगा, बच्चा ऑल टुगेदर ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करता या एक्सपेक्टेशंस अपने हमारे पूरा नहीं उतरता। तो हमारे को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि हम वहीं पे जो है और प्रॉप्स यूज करें, ताकि जो है इस अप्रोच के थ्रू हम जो है स्टूडेंट्स को टीच कर सकें। Thank तो you very लैंग्वेजेस much. में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता है बाय मेकिंग यूज ऑफ। Thank you very much, ma'am. Now I request Mrs. Karuna Obrai for presenting vote of thanks. Ma'am Karuna, please. Okay, good evening, everybody. आवाज क्लियर है विकास? हाँ जी मैम, very much clear. Okay, so good evening, everybody. I hope that you all are enjoying the workshop and have learned a lot from communication skills of different resource person. I would like to convey my thanks to Dr. Rekha, Assistant Professor, Alwa Central College of Education for Women, Ludhiana. You all must have noticed a change. Since last 4 days, our resource persons were male members, and now today's resource person, Dr. Rekha, is an energetic and you can say full of enthusiasm and innovative female professor. Her topic was constructive approach in lesson planning, and she has given examples from day-to-day life to make the lesson more influential. So a very lively session it was, and Dr. Rekha is really, you can say, a lady who has contributed to the literary activities with full energy, enthusiasm, and deep involvement for all-round development or welfare of the student community. We are thankful to Dr. Rekha, and I also convey my thanks to all the participants from the core of my heart. Thank you. So goodbye. Thank you so much, ma'am. Thanks for the opportunity. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Rekha. Thank you, ma'am. There is 2 announcements for the participants. First is this is workshop, and all of you know that in workshop is not like a seminars. In workshop, we also have to perform something. And since the last 5 days, we have not given you any assignment. Now we are giving you an assignment on the basis of the 4 approaches we have learned from our resource persons. That is from value-based lesson plan, from constructivistic-based lesson plan, from that model-based lesson plan. You can make any one lesson plan on the basis of these approaches, and you have to send it to the organizers. From the lesson plan we received, we will try to publish that in the form of book and make available to all of you. So please, you are requested to send lesson plan on any of the topic, on any of the approach which we have discussed. And second is, since we are approaching on the last day of this workshop, and we need some reflections from the participants. If any of the participants want to give some reflections on the workshop, maybe positive, maybe negative, maybe suggestive, any type of reflection, they all are welcome, but they should give us name so that we can arrange that in the last valedictory session, which we are going to hold on the Monday at 4:30 p.m. Now, thanks all of you. We will meet again tomorrow at the same time in the same platform. Thank you one and all.